أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ہے وہ سبق ریوائز کیا ہوا ہوگا۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے قاعدے کی کلاس شروع کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے اپنا حروف تہجی ختم کیے، ہم نے وہ سارے دیکھے، اور اس کے بعد اب ہم مرکبات یعنی کہ کمپاؤنڈس جو لفظ ملا کے پڑھنے ہوتے ہیں ہم ان پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں، پہلے والا سبق اگر کسی نے آپ میں سے سنانا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دفعہ میں ریوائز کر دوں گا اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے اپنے ہم دعا پڑھ کے، علم میں اضافے کی دعا پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ہاں جی، آپ میں سے کسی نے سبق سنانا ہے؟ یہ یہاں سے لے کے اینڈ تک، یہاں تک سنانا ہوگا۔ کسی نے سنانا ہے تو بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اچھا، الرحیم بالکل آپ نے رک رک کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ جلدی، زیادہ تیز نہیں پڑھنا، آرام آرام سے ایک ایک لفظ ادا کر کے جی پڑھیں۔ الف الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف بالکل، یہ دو کاف لائنیں بھی لام ہیں۔ جی جی با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سبق سنایا ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کسی نے سنانا ہے یا میں ایک دفعہ ریوائز کر دوں؟ تو چلیں ایک دفعہ میں ریوائز کر دیتا ہوں سبق کو، اور اس کے بعد ہم اپنا آگے کا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب میں ریوائز کروں گا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اپنا یہ ریوائز کرنا ہے۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف سا با تا تھا نون یا با الف نون الف۔ تو یہاں تک ہمارا پہلے والا سبق تھا، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ لفظوں کی پہچان ضروری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظ اگر اوپر ایک ڈاٹ ہو، جس طرح یہاں پہ دیکھیں اوپر اگر ایک ڈاٹ ہو، ایک نقطہ ہو اوپر، تو ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے، نون کے ساتھ ملایا ہوا ہے الف کو۔ اسی طرح اگر نیچے ایک ڈاٹ ہو تو با۔ اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ لفظوں کی پہچان لازمی کرنی ہے۔ اگر کوئی لفظ کسی کو سمجھ نہ آئے یا اس کی پہچان نہ آ رہی ہو تو آپ نے لازمی بتانا ہے، ہم پھر اس کے اوپر تھوڑا اور ٹائم لگا لیں گے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، آخری دو لائنیں ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ سبق یہ اپنا پیج ختم کر دیں گے، اور ہم شروع سے یہاں تک ایک چھوٹا سا ہم ایک ایکسرسائز رکھیں گے جس میں ہم بیچ بیچ میں سے لفظ سنیں گے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب یہ والا دیکھیں جو گرین والا لفظ بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے دو ڈاٹ پہلے ہیں اور اوپر ہیں۔ اب دو ڈاٹ اوپر کس کے ہوتے ہیں؟ ہمیں بالکل پتا ہے، تا کے دو ڈاٹ اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر میں اس لفظ کو یوں کمپلیٹ کروں تو یہ کیا بنتا ہے؟ تا۔ اب تا کے ساتھ چونکہ الف ملانا ہے تو تا کو
आधा काट के और आगे अलिफ मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ता अलिफ। अब इसी तरह दो डॉट अगर नीचे हो जाएं, अब इस चीज का खास ख्याल रखना है। देखें, ता भी इसी तरह हम लिख रहे हैं, जब मिला के पढ़ना है अलिफ के साथ, तो या की भी शेप यही बन रही है। लेकिन क्या फर्क है, या के डॉट जो हैं वो दो नीचे हैं, दो नुक्ते जो हैं वो या के नीचे हैं, ये देखें नीचे वाले लफ्ज के नीचे हैं, और ता के ऊपर वाली साइड पे हैं। तो ये फर्क है ता और या में, जब ये मिला के किसी से पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है, अगर कभी आपने कोई लफ्ज देखें किसी और लफ्ज के साथ मिला हुआ हो और उसके नुक्ते जो हैं वो नीचे वाली साइड पे हों और दो नुक्ते हों, तो वो क्या होगा, या होगा। अब देखें, पहले हमने देखा कि अगर ऊपर दो नुक्ते होंगे, दो डॉट ऊपर वाली साइड पे होंगे, तो ये होगा ता। अब अलिफ के साथ मिलाया हुआ है तो क्या बनेगा, ता अलिफ। इसी तरह अगर दो डॉट नीचे आ गए हैं, नीचे दो नुक्ते आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, या। तो या के साथ क्या मिलाया हुआ है, अलिफ मिलाया हुआ है, तो क्या बनेगा, या अलिफ। ये वाला क्या है, ता अलिफ। ये क्या है, या अलिफ। अब आ जाए इस लफ्ज पे। जिस तरह हमने ता और या में फर्क देखा, अब ये क्या है, ये अगर देखें ऐसे मैं पूरा लफ्ज बनाऊं मिलाऊं, तो ये क्या बनता है, तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे। तो इसका मतलब है ये सा है, सही। ये क्या है, सा है, तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे। लेकिन अगर, अभी आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे एक लाइन छोटी सी इस तरह और बनी हुई होती है, जिस तरह ऊपर उठी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये देखें, जहाँ पे स्टार्ट है, इसी तरह अगर यहाँ पे ये होता ऐसे, तो ये फिर सा ना होता, इसको फिर हम शीन पढ़ते, सही। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि सा का एक, यहाँ से जो है एक ही छोटी सी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या एक डॉट, एक डंडा सा बना हुआ होता है। तो ये तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे और स्ट्रेट लाइन इस तरह करके है, तो ये है सा, ठीक है। था अलिफ। अब शुरू से पढ़ते हैं, ता अलिफ, या अलिफ, ता अलिफ। अब आगे आ जाएं, एक डॉट नीचे वाली साइड पे हमने अभी देखा, इस जगह पे ये देखें, ये यहाँ पे हमने अभी देखा था कि अगर एक डॉट नीचे हो और शुरू से ऐसे बना हुआ हो, छोटा सा डंडा ऊपर हुआ है, छोटा सा, देखें बिल्कुल छोटी सी ऊपर हुई है, और इसी तरह यहाँ पे भी निशान ऊपर वाली जगह से है और एक डॉट नीचे है, ये जो ब्लू कलर का है, तो ये क्या है, बा। तो ये क्या बनेगा, बा, और साथ क्या मिलाया हुआ, सीन। तो क्या बना, बासीन, बासीन। अब दोबारा से इस लफ्ज पे आ जाए, इस लाइन पे आखिरी लफ्ज। हमने कहा था अगर दो डॉट नीचे होंगे, अगर दो डॉट नीचे होंगे तो क्या होगा, बिल्कुल हमें याद है, अगर दो डॉट नीचे होंगे तो वो या बनेगा, ठीक है। ये वाला ब्लैक वाला, तो या के साथ क्या मिलाया हुआ है, सीन, तो क्या बना, यासीन। ये लाइन मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ता अलिफ, या अलिफ, ता अलिफ, बासीन, यासीन। हाँ जी, अभी जो जिन्होंने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की है, अगर आपने सबक सुनाना है तो बताएं, हमने अभी सबक सुन लिया था। अगर सबक सुनाना चाहता है आप में से कोई, तो एक दफ़ा हम सबक सुन लेते हैं, फिर से रिवाइज करवा दूंगा मैं। जी, सुनाना है किसी ने? अच्छा, चलें हम आगे चलते हैं फिर इसी तरह। ये जिस तरह अभी हमने ये लाइन ख़त्म की, इसको लाइन को देख के हम दोबारा आगे चलते हैं। तो ये लाइन क्या थी, ता अलिफ, या अलिफ, ता अलिफ, बासीन, यासीन। अब आ जाए आखिरी लाइन हमारी, जो इस पेज की आखिरी लाइन है। सबसे पहला लफ्ज क्या है, एक डॉट ऊपर वाली साइड पे, ऊपर वाली जगह पे एक डॉट है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखें ऐसे कर दूं इसको, और ऊपर एक डॉट हो, तो ये क्या बनता है, नून। एक डॉट ऊपर और गोल शेप, तो ये नून बनता है। जब हमने इसको किसी और लफ्ज के साथ मिलाना है, तो हमने शुरू में इतना लिख के आगे क्या डाल दिया, स्वाद। तो ये क्या बना, नून स्वाद। क्या बना, नून स्वाद। फिर से देख लें, पहले क्या है, एक डॉट है ऊपर वाली साइड पे, और लफ्ज किस तरह से है, ऐसे। एक डॉट ऊपर वाली साइड पे और ऐसे लफ्ज बना हुआ गोल, तो ये है नून। याद रखना है, नीचे डॉट होगा एक, तो वो बा होगा,
नीचे एक डॉट एक नुक्ता अगर नीचे वाली साइड पे होगा, इस जगह पे होगा, नीचे यहाँ पे एक नुक्ता होगा तो वो बा होगा। लेकिन अगर ऊपर होगा एक नुक्ता एक डॉट ऊपर वाली साइड पे होगा तो वो क्या होगा? नून। और नून के साथ क्या मिला हुआ है? सौद। तो क्या बनेगा? नून सौद, नून सौद। उसके बाद दो डॉट ऊपर वाली साइड पे। जी, दो नुक्ते ऊपर वाली साइड पे। हमने आज यही देखा कि दो नुक्ते ऊपर आ रहे हों तो क्या होता है? ता। तो ये ता के साथ क्या लफ्ज मिला हुआ है? बिल्कुल स्वाद की तरह है। स्वाद के बाद क्या आता है जिसका ऊपर एक डॉट हो? देखें, स्वाद के ऊपर कोई डॉट होता है? कोई नुक्ता होता है? नहीं होता। अगर सौद हो और उसके ऊपर एक नुक्ता हो जिस तरह ये है तो ये क्या बनता है? बौद। ता बौद, ता बौद। इसके बाद वही लफ्ज जिस तरह अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था, ये वाला तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे, लेकिन शुरू में एक डंडी। ये देखें, छोटी सी एक डंडी नजर आ रही है हमें, एक डंडी शुरू में और तीन डॉट। तो ये क्या था? सा। ये क्या था? सा। इसके साथ अब हमने एक और लफ्ज मिलाया। कौन सा लफ्ज मिलाया? ये जो ग्रीन कलर में है, तो। तो ये क्या बना? सा तो, सा तो। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये दो लफ्ज आखिरी हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा से शुरू से आते हैं। इसी तरह तीन डॉट हैं। अब देखें, यहाँ पे आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, ये बच्चों को भी याद करवाना है, खुद भी समझना है। सा जो है, जब हम उसको तो के साथ मिला रहे हों या किसी और लफ्ज के साथ मिला रहे हों तो ऐसे लिखेंगे, ये देखें जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर जीम, हा, खा, इनमें से किसी लफ्ज के साथ मिलेगा तो ऊपर वाली साइड पे, ये देखें ऊपर वाली साइड पे तीन डॉट आएंगे और वो इस तरह से मिला हुआ होगा। ये अब ऊपर तीन डॉट हैं, ये देखें तीन डॉट हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये, जब जीम, हा, खा इन तीन से मिलेगा सा, तीन डॉट ऊपर वाली साइड पे होंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। इस चीज का आपने खास फर्क देखना है। जब भी किसी लफ्ज के ऊपर वाली साइड पे तीन डॉट हो वो सा होता है, उसके साथ एक डंडी होनी चाहिए। देखें, इसकी भी एक डंडी निकली हुई है, ये देखें छोटी सी। तो एक डंडी निकली हुई है, तीन डॉट है, तो क्या होगा? सा। सा के साथ क्या मिल गया? ये तो सबको पता है, बिल्कुल ये सही आपको पता होगा। जीम। तो क्या बना? सा जीम। इसी तरह ये वाला लफ्ज, ये देखें आगे वाला लफ्ज, दो डॉट ऊपर वाली साइड पे, अभी हमने आज यही देखा, दो डॉट ऊपर वाली साइड पे और एक डंडी छोटी सी बनी हुई है, ये देखें नजर आ रही होगी आपको, छोटा सा एक डंडा बना हुआ है, बाहर निकली हुई है लाइन छोटी सी, ये वाली। तो एक लाइन, एक डंडी छोटी सी और दो डॉट ऊपर वाली साइड पे, क्या होता है? ता। और ता के साथ ये क्या मिला हुआ है जिसमें कोई डॉट नहीं है, कोई नुक्ता नहीं है, ना ऊपर ना दरमियान में, वो होता है हा। तो क्या बना? ता हा। आज जो हमने दो लाइनें देखी हैं, एक दफा फिर से इनको रिवाइज करते हैं। अच्छा, किसी ने अगर रिवाइज करना है तो मेरे पीछे आप माइक अपना ऑन कर लें, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ और आपने रिवाइज कर लें अगर किसी ने रिवाइज करना है तो। ता अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, सा अलिफ, बासीन, बा से, यासीन, या से, नून सौद, नून साद, ता बौद, ता दाद, सा ता, सा ता, सा जीम, सा जीम, ता हा। ता हा। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ जी, अभी फिर से बता दें, किसी ने अगर पहले वाला सबक सुनाना है तो हम सबक सुन लेते हैं, वरना मैं पूरा पेज एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा अगर किसी ने उससे पहले सुनाना हो, रिवाइज करने से पहले। जी, सुनाना है किसी ने? चलें, किसी ने नहीं सुनाना तो मेरे ख्याल से साइम ही है, आप ही माइक ऑन कर लें, मैं पूरा पेज एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ। आपने मेरे पीछे पीछे मेरे साथ रिवाइज करना है और उनके साथ बाकी सब ने भी रिवाइज करना है। तो हम पूरा पेज एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। अलिफ, अलिफ,
لام الف لام ألف لام الف لام ألف با الف با ألف لام الف لام ألف لام ہاں جی آپ لام الف لام ألف لام جیم لام جيم لام الف لام ألف با لام با با لام کاف كاف کاف كاف کاف با كاف با کاف تا كاف تا کاف الف كاف ألف کاف لام كاف لام با کاف تا با كاف تا کاف تا تا كاف سا با با تا 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 سا نون نون یا يا با الف با ألف نون الف نون ألف تا الف تا ألف یا الف يا ألف تا الف سا ألف با سین با سين یا سین ياسين نون صاد نون صاد تا ضاد تا ضاد تا طا تا طا طا نہیں طا پڑھیں گے اس کو تا طا طا ہاں جی سا طا تا جیم سا جيم شاباش تا حا تا ها ویری گڈ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ سے چلیں باقی سب نے بھی اس پیج کو ریوائز کر لینا ہے ہم اس کو پھر سے بھی پڑھیں گے ایسا نہیں کہ ہم ایک دفعہ پڑھ کے اس کو ختم کر دیں گے ہم ان کو جب تک ہمیں ان لفظوں کی پہچان نہیں ہو جاتی اچھے طریقے سے ہمیں سب لفظ سمجھ نہیں آ جاتے تب تک ہم اسی پیج کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو ایک دفعہ پھر سے میں جو خاص الفاظ ہیں جو مشکل والے لفظ ہیں جن میں پہچان نہیں ہوتی میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں نے بتایا جس کے نیچے ایک ڈاٹ ہو اور اوپر دیکھیں اوپر والی سائڈ پہ ایک ڈنڈی ہے چھوٹی سی لائن نکلی ہوئی ہے نیچے والی سائڈ پہ ایک ڈاٹ ہے ایک نقطہ نیچے والی سائڈ پہ ہے تو وہ ہوگا با اگر وہی نقطہ اوپر والی سائڈ پہ ہے لفظ کے اوپر ہے اوپر نقطہ ہے اور نیچے وہ لائن ہے جو ڈنڈی چھوٹی سی نکلی ہوئی ہے تو وہ ہوگا نون تو با اور نون میں کیا فرق ہے با کا نیچے ڈاٹ ہوتا ہے نون کا ڈاٹ یا نون کا نقطہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے اس کے بعد تا پہ آ جائیں تا کے دو ڈاٹ ہوتے ہیں بالکل با کی طرح ہی شیپ ہوتی ہے ایک ڈنڈی ہوتی ہے لیکن دو ڈاٹ ہوتے ہیں اوپر والی سائڈ پہ صحیح دو ڈاٹ ہوتے ہیں اوپر والی سائڈ پہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی یا لائن نکلی ہوئی ہے اسی طرح یہ لائن یہ ڈنڈی جو ہے اگر ہو اور دو ڈاٹ نیچے والی سائڈ پہ ہوں جیسے یہاں پہ ہیں تو وہ نیچے والے ڈاٹ کیا ہوں گے اگر وہ دو ڈاٹ نیچے آ گئے اور اس طرح لائن نکلی ہوئی ہے تو وہ ہوگا جا تو تا اور یا میں کیا فرق ہوا دونوں کے دو دو ڈاٹ ہیں لیکن اگر دو ڈاٹ اوپر والی سائڈ پہ ہیں تو وہ تا اگر دو ڈاٹ نیچے والی سائڈ پہ ہیں تو وہ یا اس کے بعد آ جائیں سا پہ سا کا کیا فرق ہے اس کو ہم نے شین کے ساتھ دیکھنا ہے مثال کے طور پہ یہ والا لفظ ہے اگر میں یہاں پہ جس طرح ایک یہ ڈاٹ ڈال دیتا ہوں
और एक ये डॉट डाल देता हूँ और इसके साथ एक मैं डॉट यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, 3 नुक्ते मैंने डाल दिए। अब इस चीज़ को देखें, यहाँ पे एक डंडी निकली हुई है और ऊपर वाली साइड पे 3 डॉट हैं। कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं, यानी कि 3 डॉट ऊपर वाली साइड पे हैं और एक डंडी निकली हुई है। जबकि यहाँ पे देखें इस येलो वाले में, ये छोटी-सी एक डंडी हो गई। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। तो अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, आपको फिर से सही नज़र आएगा। ये देखें, अब नज़र आ रहा है आपको सही? तो देखें ये जो शीन वाले मैंने नुक्ते डाले थे, मैं इनको दोबारा से डाल के आपको बताता हूँ। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ये अगर एक नुक्ता यहाँ पे हो, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तो सा का देखें, सा की एक लाइन है, ठीक है? सा की एक लाइन निकली हुई है और ऊपर वाली साइड पे 3 डॉट हैं। एक लाइन है और 3 डॉट हैं। तो सा 3 डॉट ऊपर वाली साइड पे और एक लाइन। शीन के भी 3 ही डॉट होते हैं, ठीक है? शीन के भी ऊपर वाली साइड पे 3 डॉट होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? ये देखें, एक डंडी, ये दूसरी डंडी और ये तीसरी डंडी। तो शीन की 3 डंडी होती हैं। कितनी होती हैं? देखिए 3 जगह पे ऊपर निकला हुआ है, थोड़ा-थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। लेकिन सा में क्या फ़र्क है? सिर्फ़ एक शुरू में आया। तो सा और शीन का फ़र्क आप लोगों ने लाज़मी याद रखना है। कौन-कौन से हमने फ़र्क देखे? बा और नून। बा में नीचे डॉट, नून का ऊपर डॉट। ता, या, ता के ऊपर 2 डॉट, या के नीचे 2 डॉट। उसके बाद सा, शीन, दोनों के ऊपर ही हैं 3 डॉट, लेकिन एक डंडी वाला सा, 3 डंडी वाला शीन। तो ये आप लोगों ने फ़र्क लाज़मी याद रखना है। चलें यहाँ तक हम अपना सबक ख़त्म करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, हमने जो भी सबक पढ़ा है, हमारा इस सबक को पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें इस पर अमल करने की, इसको समझने की और इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी हम कुरान पाक पढ़ेंगे, तो हमने क्या करना है? कुरान पाक पढ़ने के बाद अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यानी कि अपने माँ-बाप के लिए या अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है। तो हम अपना यहाँ पे सबक ख़त्म करते हैं। अपने लिए भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। अगली क्लास में इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है। अगली क्लास तक के लिए आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।